Hello everybody, welcome to my YouTube channel. I am Chemistry. Today we are going to discuss Carnot cycle. So what basically Carnot has done in this cycle? Carnot uses 4 strokes to measure the maximum conversibility of heat into work. Maximum conversibility of heat into work. ठीक है, तो कार्नोट साइकिल को क्यों यूज किया, क्यों डिजाइन किया, उसका कारण था ये निकालने के लिए कि कितनी हीट को वर्क में, मैक्सिमम कितनी हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए कार्नोट ने क्या किया, कार्नोट ने 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ली और उसको 4 स्टेजेस से निकाला, 4 अलग अलग स्टेजेस से, जिसे कि उसने 4 स्ट्रोक्स नाम दिया, लाइक फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक। सो जो फर्स्ट स्ट्रोक था उसमें वो जो गैस थी वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाया उसने उस आइडियल गैस का, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस का, और किसमें, रिवर्सिबली यानी कि वो प्रोसेस रिवर्सिबली हो रही थी, इन रिवर्सिबल प्रोसेस लाइक सिस्टम। तो उसमें उस कार्नोट ने क्या किया, पहला जो स्ट्रोक था हमारा, ये पीवी सिस्टम, पीवी वर्क, उसने पीवी एक कर्व बनाई प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। दिस इज पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। सो इट इज प्रेशर P1 and V1. It is at pressure P2 and V2. It is at pressure P3 and V3 and pressure P4 and volume V4. So in the stroke 1, the gas goes from the path A to B it is an isothermal expansion, reversible isothermal expansion. So in isothermal expansion means the gas goes from some low value of one property to another property. So in this case, the gas goes from an increase in volume, that is expansion of one volume, from volume V1 to volume V2, in going from the path, going along the path from 2 points along A to B, and this is an isothermal process, isothermal expansion. So the temperature must be constant. So we have Carnot taken the temperature T2 here. At T2 temperature, the 1 mole of our ideal gas goes from an expansion from volume V1 to volume V2 along the path from point A to point B. So he using the first law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है हमारे पास, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, यही होता है ना। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट अब्सॉर्ब्ड एंड इन डूइंग द हीट अब्सॉर्प्शन ऑफ इट सम वर्क इज डन। सो अब क्योंकि हमारे पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो किसी भी क्योंकि एक तो आइडियल गैस है और एकदम अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डेल्टा U की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि डेल्टा U टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली इन द केस ऑफ एन आइडियल गैस, एंड एज अवर प्रोसेस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, सो इफ T is 0 then delta U is also equal to 0. Then this equation comes like this: 0 is equal to Q plus W and Q is equal to यानी कि whatever we write is minus W. So in this case
the heat absorbed in going from path along points A to B at constant temperature T2 is equal to the work done by the system, because the negative sign in the case of isothermal expansion, the negative sign of work shows that the work is done by the system on the surroundings. Work is done by the system on the surroundings, and that is a convention. So Q is equal to minus W, and we all know that in the case of an isothermal expansion, the work done is equal to R T ln V2 by V1, because V2 is our final volume and V1 is our initial volume. Then the temperature here is T2, the constant temperature. So this is our first equation. So this is our equation of isothermal expansion in the case of Carnot cycle, and the work done we are going to denote it as W1, because W1 shows the work done in the case of an isothermal expansion in stroke 1. So heat absorbed is equal to the work done by the system on the surroundings, and is equal to RT2 is equal RT2 ln V2 by V1, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम. ठीक है. अब हम हमारा जो सेकंड स्ट्रोक है, सेकंड स्ट्रोक कौन सा है हमारा? सेकंड स्ट्रोक हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन. एडियाबैटिक एक्सपेंशन. एडियाबैटिक का क्या मतलब होता है कि नो हीट इज अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम, यानी कि Q तो जीरो इक्वल ही होगा एडियाबैटिक के केस में. किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस में Q इज इक्वल टू जीरो. सो एंड इन द केस ऑफ एक्सपेंशन, सो द वॉल्यूम गोज इट इज फ्रॉम B टू C. ये साइकिल ऐसे चलती है. सो B से C पॉइंट तक आने पर क्या जो एक्सपेंशन हुआ वो क्या हुआ? वॉल्यूम V2 से V3 तक वॉल्यूम एक्सपेंड होकर वॉल्यूम V2 से V3 तक चली गई. तो इसमें हमारी जो, लेकिन अब इसमें एक चीज और हुई है, क्योंकि जो हमारा, अगर मैं यहाँ पे इस फर्स्ट लॉ को देखूं, मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको बाद में लिख लेंगे. अगर हम इसमें फर्स्ट लॉ को देखें कि क्या होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q की वैल्यू जीरो है इस केस में, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में. ठीक है. और सो डेल्टा U किसके इक्वल हो जाएगा? W के. सो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम. वो हम अभी बताते हैं. सो इन गोइंग फ्रॉम अलोंग पॉइंट B to C, the expansion of volume V2 to volume V3 takes place. लेकिन अब एक और काम हुआ, क्योंकि हीट तो हमारी जीरो है, कोई हीट ना ही सिस्टम सराउंडिंग से अंदर आई ना ही सिस्टम से बाहर गई. तो हम वर्क डन कैसे हुआ? क्योंकि वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन कब होता है? जब कुछ ना कुछ हीट सिस्टम यूज करता है वर्क को करने के लिए. तो फिर इससे क्या होगा? हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा. तो अगर यहाँ इस आइसोथर्मल कंडीशन में यहाँ पर टेम्परेचर T2 था, तो ये जो टेम्परेचर होगा ना यहाँ पर, वो टेम्परेचर T2 से T1 हो जाएगा, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में गैस कूलिंग ऑफ गैस होती है. ओके. तो ये वो लो टेम्परेचर मान लिया हमने. ठीक है. अब हमारा जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं. जो डेल्टा U W की इक्वल होता है. तो अगर मैं W इज इक्वल टू डेल्टा U किसके इक्वल होता है? CV डेल्टा T के. और क्योंकि जो CV होती है वो क्या होती है? हमारी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद डिवाइडेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर विद 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो W इज इक्वल टू CV डेल्टा T, क्योंकि W डेल्टा U की इक्वल और डेल्टा U CV डेल्टा T की इक्वल होता है. तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए. अब यहाँ पर डेल्टा T का क्या मतलब है कि जो कोई भी फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को इंक्रीज
इनिशियल टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर देंगे, इनकी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर क्या है, फाइनल टेम्परेचर हमारा T1 है, क्योंकि T2 से T1 पर गए। T2 पर तो यहाँ पर प्रोसेस हमारी गैस थी ऑलरेडी, हमारी जो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस थी वो T2 टेम्परेचर पर तो यहाँ पर थी, पर वो जब यहाँ पर आई, इस पॉइंट से B से C पर आई, तो वो कूल हो गई, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन का केस था, कोई हीट नहीं थी, तो सिस्टम को अपना ही वर्क, जो अपनी ही जो एनर्जी थी डेल्टा यू थी, जो उसकी इंटरनल एनर्जी थी, उसी को यूज करना पड़ा वर्क को करने में। उससे क्या हुआ, टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है, गैस हमारी कूल हो गई। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में ये हमने पहले भी देखा है। तो CV डेल्टा T इज इक्वल टू CV। अब हमारा फाइनल टेम्परेचर T1 है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इनिशियल टेम्परेचर T2 है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, यही बनेगी एक्सप्रेशन। अब हमें क्या करना है, CV T1 माइनस T2। अगर मैं इसको क्या लिखूं, अगर मैं अब इसको क्या लिखूंगा, मैं अगर यहां पर माइनस साइन ले आऊं, माइनस साइन, एक और चीज, माइनस साइन तो हमारा यहां पर भी आएगा। जैसे मैं इसको माइनस CV कर दूं, माइनस CV, तो ये क्या होगा, ये इधर आ जाएगा। अगर हम इसको ऐसे लिख लें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये बाद में जब हम ऐड करेंगे टोटल वर्क डन को, टोटल हीट को, तो ये वहां पर हमें आसानी रहेगी इसको ऐड करने में। और हमारा जो वर्क डन है वो वर्क डन कैसा है, वर्क डन इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। वर्क किसने किया है, सिस्टम ने किया सराउंडिंग के ऊपर। और फिर से कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करता है तो हमारा वर्क डन नेगेटिव आता है, ठीक है, तो यहां पर भी माइनस आएगा W। तो इसको मैं W2 लिख रहा हूं इसको, ठीक है, क्योंकि ये हमारा स्ट्रोक 2 के केस में है ये। तो W2 इज इक्वल टू माइनस CVT2 माइनस T1, ओके। तो ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमारी जो थर्ड इक्वेशन होगी, हमारा जो थर्ड स्ट्रोक लिया उसने, हमें ये इक्वेशंस याद रखनी है, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में इनको ऐड करेंगे, फिर हम नेट वर्क डन और नेट हीट अब्सॉर्ब निकालेंगे। सो इन द केस ऑफ third stroke, we have, in the case of third stroke, Carnot taken the condition of isothermal compression, ठीक है। कंप्रेशन के केस में क्या होता है, हमारी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। तो अब हमारी जो गैस थी, आइडियल गैस, वो इस पॉइंट पर थी, जो हमारा जितना भी चेंज था, जो स्टेट चेंज हुआ था, वो इस पॉइंट तक, वो भी यहाँ पर है। तो अब जैसे वो C से D पर जाना है हमें, तो हमारा यहाँ पर टेम्परेचर T1 फॉल हुआ था ना, तो हमारी गैस यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पर C से D पॉइंट तक जाएगी, और जो हमारी वॉल्यूम होगी वो V3 से V4 डिक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम डिक्रीजेज फ्रॉम V3 टू V4, ठीक है, क्योंकि कंप्रेशन का केस है, वॉल्यूम डिक्रीज होगी देन V3 टू V4। अब आइसोथर्मल कंडीशन है, तो हमारा वही, हम अगर फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, तो डेल्टा U आइसोथर्मल कंडीशन के केस में 0 होती है आइडियल गैस की। तो Q की वैल्यू अगेन माइनस W की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और इस केस में, यानी कि जो हमारा ये Q होगा, अगर हम इसको Q1 लिखें, क्योंकि सिस्टम ने अगर Q1 हीट अब्सॉर्ब की इज इक्वल टू, इसको, ये तो हमारा अब की बार, क्योंकि कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन के केस में जब भी गैस कंप्रेस होती है तो वर्क डन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव लेना होता है, क्योंकि सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर वर्क किया होता है। तो इसको केवल हम ऐसे लिखेंगे -Q, और इस केस में बार हीट रिलीज हुई है, ओके, तभी तो एक्सटर्नल वर्क डन हुआ है, क्योंकि सिस्टम को बाहर से हीट लेनी नहीं पड़ी, सराउंडिंग से हीट नहीं लेनी पड़ी। जो सिस्टम ने जब स्टेट चेंज की, उस वक्त जो हीट रिलीज हुई, सिस्टम ने उसी रिलीज हीट से वो वर्क डन किया।
जिससे कि उसे बाहर से हीट नहीं लेनी पड़ी, और तो इसीलिए हमारा वर्क डन पॉजिटिव आएगा कंप्रेशन के केस में, और यही कन्वेंशन भी है। सो Q1 इज इक्वल टू माइनस Q1 इज इक्वल टू W3, क्योंकि ये थर्ड स्ट्रोक है, इज इक्वल टू क्या होता है हाइड्रोथर्मल कंप्रेशन के केस में वर्क डन का फॉर्मूला याद कीजिए, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, RTLN हमारी फाइनल वॉल्यूम और हमारी इनिशियल वॉल्यूम। हमारी फाइनल वॉल्यूम क्या होगी इस केस में, जैसे V3 से V4 तक डिक्रीज हुए तो फाइनल वॉल्यूम V4 और इनिशियल वॉल्यूम V4 टू V3, ठीक है। ये हमारी होगी थर्ड इक्वेशन। आप नोट कर देते इन इक्वेशंस को, हम बस फोर्थ स्ट्रोक के बाद इन सभी को ऐड करेंगे। ओके, सो देन वी हैव our fourth stroke, which is again under adiabatic conditions. So in the case of adiabatic compression, वो तो था isothermal compression और ये क्या है adiabatic compression. So in the case of adiabatic compression we have compression हुआ है, तो ये तो obvious सी बात है कि हमारी जो वॉल्यूम होगी वो डिक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम कहां से कहां तक डिक्रीज हुई है, V4 से V1, क्योंकि अभी हमारी जो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है इस चेंज ऑफ स्टेट के केस में वो D पॉइंट पर है, वो P वापिस A पॉइंट पर जाएगी। सो वॉल्यूम जो उसकी वॉल्यूम अभी है ना D पॉइंट पर, वो A पॉइंट पर जाकर उसकी जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, जो इनिशियल शुरुआत में जो हमने इन चारों स्ट्रोक के शुरुआत में इन चारों स्ट्रोक्स को अप्लाई करने से पहले ली थी, वही वॉल्यूम होगी अब इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम, ये अपनी उसी वॉल्यूम पर पहुंच जाएगी V4 टू V1। सो एडियाबैटिक कंप्रेशन है, Q की वैल्यू 0 होगी, द वर्ड एडियाबैटिक शोज इट, एंड यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q प्लस W और डेल्टा U इज इक्वल टू W, क्योंकि Q की वैल्यू हमारे पास 0 हुई, ठीक है। फिर से हम डेल्टा U की वैल्यू क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू डेल्टा U की वैल्यू आइडियल गैस के केस में कितनी होती है, CV डेल्टा T। सो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा U CV डेल्टा T, और जो हमारा डेल्टा T है वो क्या है, फाइनल टेम्परेचर में से हमने इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करना है। ओके, हमें फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करना है। सो हमारा फाइनल टेम्परेचर क्या है इस केस में, हमारा फाइनल टेम्परेचर है T1, क्योंकि हमारी जो नहीं हमारा फाइनल टेम्परेचर T2, यहां पर हमारी गैस T1 टेम्परेचर पर थी इस स्टेट में। सो ये वैल्यू हो जाएगी CV T1 माइनस T2, ठीक है। T1 से T2 की तरफ गई है, नहीं T2 माइनस T1, हम फिर से वही गलती कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल में तो T2 है यहाँ पे और यहाँ पर T1 है, ये इनिशियल है ये फाइनल है, इस केस में T2 माइनस T1, ओके, एंड इट इज इक्वल टू द वर्क डन। So this is the case of our fourth stroke. So I am going to represent it by W4, and the work done in this case is in adiabatic condition is again also compression. So due to the case of compression, according to the convention, work done is taken as positive. वर्क को हम पॉजिटिव ही लेंगे इस केस में भी। So ये हमारी होगी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस के ऊपर। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी, आपको इस इक्वेशन को याद रखना है, ठीक है। लेकिन एक और चीज है, अब हमें नेट हीट कितनी निकली हमारी, क्योंकि हमने जो Q1 और Q2 ली थी ना, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमारी Q1 हीट निकली थी, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन में Q2 हीट थी, और आइसोथर्मल कंप्रेशन में हमारी Q1 हीट थी। हम उसको टोटल कर लेते हैं कि हमारी वो कितनी हीट बनती है। सो लेट्स डू इट। सो नेट हीट
नेट हीट अब्सॉर्ब्ड, तो हमारी नेट हीट कितनी अब्सॉर्ब हुई है हमसे, चलो देखते हैं, हम इसको निकालते हैं। नेट हीट कैसे निकलेगी, जो Q हम नेट मान लेते हैं, नेट हीट थी और कितनी थी Q2 हमारी आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में थी और Q1 हमारी किसके केस में थी, वो जो कि माइनस की थी, इसके आगे हम माइनस साइन लगा था, ये हमारे किसके केस में थी, आइसोथर्मल कंप्रेशन के केस में। अब हम इनकी वैल्यूज को लिखते हैं, जैसे कि जो इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन थी और ये जो थर्ड इक्वेशन थी वही हमें अब यहाँ पे लिखनी है। Q2 की वैल्यू कितनी थी, RT2 ln V2/V1 एंड माइनस Q1 किसकी इक्वल था, RT1 ln, और यहाँ पर जो Q1 क्योंकि जो थर्ड केस था हमारा V4/V3 वॉल्यूम क्योंकि जो फाइनल वॉल्यूम थी वो इसकी इक्वल थी। तो ये हमारी आ गई नेट हीट अब्सॉर्ब्ड। अब अभी इसमें कुछ चेंजेस करने हैं क्योंकि ये तो कुछ कंक्लूसिव सा नहीं आया हमारा, सब हम इसको कुछ कंक्लूसिव निकालते हैं। अगर मैं V3 को जो हमारा अभी डिनोमिनेटर में, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊं, जो हमारा न्यूमरेटर में फिलहाल V4 उसको मैं डिनोमिनेटर में ले आऊं, तो उससे क्या होगा, ये जो साइन है ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो RT2 ln V2/V1 माइनस RT1 ln V3/V4, ठीक है, ये साइन माइनस का हो गया। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो हमारी दोनों, ये जो ln क्या है, जो वॉल्यूम की जो फ्रैक्शन है ना, ये दोनों इक्वल हो जाए, जिससे कि हमारा कुछ कंक्लूसिव आ जाए। तो हमने इसमें पढ़ा था, तो यहां पर जो हमने निकाला था कि अब हमें इन दोनों में इस इक्वेशन को कुछ कंक्लूसिव सा निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है कि किसी भी आइडियल गैस के लिए अगर हमने जो गैसी स्टेट होती है उस गैसी स्टेट में हमने एक रिलेशन पढ़ा था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का टेम्परेचर और वॉल्यूम्स के साथ, कि ये जो सेकंड होता है, ये जो B से C का जो पाथ है ना, इस पाथ तक जाने में एक रिलेशन लिख सकते हैं, CV ln T2/T1 इज इक्वल टू R ln V3/V2। और ऐसे ही जो D2A पाथ है उसके लिए हम एक रिलेशन लिख सकते हैं, किसी भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए है, अब मैं एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए लिख रहा हूँ T2/T1, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर टू इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू R ln, और इसके केस में जो वॉल्यूम चेंज है वो क्या होगा, V1/V4 in the case of fourth, CV ln T2/T1 R ln V3/V2 and CV ln T2/T1 R ln V4/V1। हाँ, फाइनल टेम्परेचर टू इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम, सॉरी, V4/V1। मैं यहां से इसको रब कर देता हूं। सो अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रखेंगे ना, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, V3/V2, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा ये एक दूसरे से, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रह जाएंगे, V4/V1, ठीक है। हम अगर भी अब इनको रीअरेंज कर दें तो उससे हमें क्या मिलेगा, हमें इनको कुछ यहाँ, यानी कि जो हमारी V3/V4 है ना, इसकी वैल्यू निकाल दें हम कहीं कैसे ही। तो अगर मैं इस V4 को इधर ले आऊं, V3/V4 इसके क्यों हो जाएगा, ये V2 उधर चला जाएगा, V2/V1। तो ये जो हमारा है ये V2/V1 की इक्वल हो गया। तो Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, RT2 ln V2/V1 माइनस RT1 ln V3/V4 की जगह V2/V1। Okay, so now we are going to write here। अब हमें क्या करना है, हमें ln को सोल्व करना है कुछ। तो जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी हीट अब्सॉर्ब्ड की, वो कितनी आएगी, RT2 माइनस T1
ln v2 by v1, क्योंकि ये तो हमारा कांस्टेंट है दोनों साइड, ये भी कांस्टेंट है, बस T2 में से T2 और T1 अलग है, तो T2 को हमने माइनस T1, R को कांस्टेंट और इसको कांस्टेंट, और ये दूसरे माइनस हो गया कि ln के टर्म्स में जो दो टर्म्स होती है वो माइनस हो जाती है, माइनस होके ये ऐसे आ गई, ठीक है। ये आ गई हमारी नेट हीट अब्सॉर्ब्ड। अब अगर मैं अब हमें निकालना है, ये हमारी नेट हीट अब्सॉर्ब आ गई। अब हमें नेट वर्क डन निकालना है कि कितना वर्क डन हुआ, नेट वर्क डन निकालना है हमें इस प्रोसेस में, ठीक है। सो द नेट वर्क डन इज इक्वल टू, आई एम डिनोटिंग इट एज बाय W इज इक्वल टू माइनस W1 प्लस माइनस W2 माइनस का था हमारा, प्लस W3 एंड W4, ये माइनस का होगा, ये माइनस आएगा, माइनस W3 और प्लस W4। सो ये हमारा किसकी इक्वल आया था, W1 की वैल्यू थी RT2 ln V2 by V1, माइनस W2 इक्वल था हमारा माइनस CV T2 माइनस T1 के, माइनस CV T2 माइनस T1। W3 किसके इक्वल था, माइनस W3 RT1 ln W3 V4 by V3 एंड प्लस ये था CV T2 माइनस T1 की इक्वल। तो हमारी ये टर्म माइनस की, ये टर्म प्लस की, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल, और बच क्या गया हमारे पास, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो W इज इक्वल टू RT2 ln V2 by V1, और फिर से जो हमारे V4 by V3 था, V4 by V3, हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, V2 by V1 जो हमने वहां पर निकाल रखा है, ठीक है। सो प्लस RT1 ln V2 by V1, ये साइन माइनस का है, माइनस, सो अगेन, so this term comes out to be RT2, again the same term like this, so जो हमारा वर्क डन होगा वो भी यही आ जाएगा, RT2 माइनस T1 ln V2 by V1। सो कार्नोट साइकिल ने हमें जो दिखाया कि वो क्या था, जो हीट अब्सॉर्ब थी वो किसकी इक्वल हुई, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, और यही तो था कार्नोट साइकिल का मेन एम, कार्नोट का मेन एम, कि वो क्या करना चाहता था, वो करना चाहता था टू फाइंड आउट द मैक्सिमम कन्वर्जिबिलिटी ऑफ हीट इनटू वर्क डन बाय द सिस्टम, एंड विच इज शोन by these two equations very well, because these two equations are equal to each other, Q is equal to W, and that is the main aim of Carnot cycle. So now let's find out the relation between Q and W. So अभी हमने जो कार्नोट साइकिल के चारों स्ट्रोक एक्सप्लेन किए, उससे नेट वर्क डन निकाला, नेट हीट निकाली, नेट हीट अब्सॉर्ब निकाली। सो हमारे पास उससे Q और W की वैल्यू आती है, लेकिन उसी कार्नोट साइकिल में हम Q और W के बीच में भी एक रिलेशन निकालते हैं। वो रिलेशन कुछ ऐसे है, देखिए हमारी जो Q की वैल्यू जो W है हमारा, वो क्या है, वर्क डन RT2 माइनस T1 ln V2 by V1, और जो हमारी हीट अब्सॉर्ब्ड है, हीट अब्सॉर्ब्ड हम किस टेम्परेचर पर निकालेंगे, T2 टेम्परेचर पर, क्योंकि T2 टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर इस कार्नोट साइकिल में, कि उस उतना ही यानी कि उस तक ही टेम्परेचर अटेन करेगी ये साइकिल, और इसीलिए हम उस टेम्परेचर पर कितनी हीट अब्सॉर्ब होगी ये निकालेंगे, क्योंकि जितनी हीट अब्सॉर्ब होगी उतना ही वर्क डन होगा कार्नोट साइकिल के अकॉर्डिंग। सो RT2 ln V2 by V1। अब अगर मैं
W इन दोनों को, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये सेकंड इक्वेशन है। अब अगर मैं इन्हें डिवाइड कर दूं W बाई Q2 तो हमारे पास क्या आएगा, ये R से R कैंसिल, ln V2 बाई V1 से ln V2 बाई V1 कैंसिल, और ऊपर क्या हो गया T2 माइनस T1 बाय में T1, और हमारा रिलेशन हो गया इन दोनों के बीच में Q2 T2 minus T1 by T1, and that is our main goal to find out the relation between the work done and the heat absorbed and the highest temperature in the case of Carnot cycle. So ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, ठीक है। इससे हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हम न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं कार्नोट साइकिल के, जहां पर कि जो ये T2 है ये सोर्स का टेम्परेचर है जिससे हीट रिलीज हो रही है, और T1 ये सिंक का टेम्परेचर जो कि हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है, T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक, और जो जिनकी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं हमारे न्यूमेरिकल में, जो गिवन होगी हमें वैल्यूज, Q2 होगी हमारी हीट अब्सॉर्ब्ड at the highest temperature T2, and W is the work done by the system on the surroundings in the case of an ideal gas. So this is our relation, and there is another relation which can be derived by this, from this, in terms of Q, that is Q2 minus Q1 by Q2 is equal to T2 minus T1 by T2, ठीक है। हम इससे ये भी एक रिलेशन निकालते हैं, और जो हमारी ये जो वैल्यू होती है T2 माइनस T1 बाय T1, इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं, T2 माइनस T1 बाय T1, ठीक है। एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू T2, यानी कि ये जो फ्रैक्शन ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड एट दिस टेम्परेचर। सो एफिशिएंसी पर भी बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं हमारे, जो कि जैसे नीट के पेपर में भी आते हैं, IIT JEE के पेपर में भी आते हैं, गेट के पेपर में भी आते हैं, बार्क के एग्जाम्स में भी आते हैं, और जो हमारे DRDO एग्जाम में भी आते हैं, जो कि जूनियर साइंटिस्ट की, वहां पर साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती रहती है, A और B कैटेगरी वगैरह वगैरह। सो उस केस में हम ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो नेट का पेपर होता है NTA नेट, जिसे कि अब NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होल्ड करती है, जो कि कंडक्ट करवाती है, उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिससे कि न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। सो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, और यहीं से एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी निकलता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ हीट, यानी कि पूरी की पूरी हीट को हम वर्क में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसी को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। एंड so in this video we have explained you the Carnot cycle and the relation between Q and W. After that, efficiency of a heat engine and the two or three formulas which are very important for the case of our competitive exams. So I hope you like this video. So press the like button, share it with your friends, and hit the subscribe button, and then hit the bell icon so that you can easily get notification about my next and oncoming video.